Hello students, welcome to online classes by SCM Children Academy Haldon. My name is Tabassum Parveen and today I have brought to you the next topic of your class 9th English book Beehive, and the topic is poem, and the poem name is On Klinga Tree. On Klinga Tree it is written by the poet whose name is Giv Patel. ये जो poem है ये गिव पटेल ने लिखी है और इस poem में गिव पटेल एक मैसेज देना चाहते हैं. गिव पटेल presents the sturdiness of fully grown tree, strengthened by nourishment from the earth, the sun and the air. In this poem, the poet wants to highlight, yeah, you can say the poet wants to focus that the trees are like human beings. And so he wants that we should not cut trees because these trees, yeah, every tree you can say, yeah, we know that trees are very important in our life. So the poem also depicts the survival instinct of a strong tree which refuses to die even when its trunk and branches have been chopped off. In this poem, the poet wants to say, if we want to cut a tree, we cut it and we chop it into pieces. But the tree is not destroyed because if we want to cut a tree या we want to destroy a tree, we have to uprooted it. हमें इसको uproot करना होगा. इसलिए यहाँ उसमें poem बोल रहे हैं जो पोएट है, इसमें बता रहे हैं कि व्हेन वी कट ट्रीज, अगर हम ट्रीज को कट करना चाहते हैं तो वी शुड अपरूटेड इट, हमें इसको अपरूट करना होगा. सो इसी से रिगार्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि द पोएट सैनिटाइजेस, इन दिस पोएम द पोएट सैनिटाइजेस द रीडर and highlights the facts that the trees are living things. Trees are living things, and he equates trees with the human beings to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. So, आइए let's start. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of a knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. So here the poet wants to convey a message that we should not cut a tree because a tree does not die by merely cutting because it grows from where it is cut. If it has to be destroyed, it has to be uprooted. In this passage, the poet wants to convey that we should not cut a tree, yeah, and he wants to say that a simple cut that does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. So I hope you have understood. In this passage, in this para, the poet wants to say कि अगर हमें किसी भी एक ट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो हम उसको ऐसे सिंपल कटिंग करके एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में फैली हुई हैं. इसने वाटर, सॉइल और सनलाइट से क्या किया हुआ है, न्यूट्रिशंस लिया हुआ है और जिसकी वजह से ये आज एक छोटे से प्लांट से एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है. ये बाउंड हुआ है सॉइल में, इसकी जो जड़ें हैं वो सॉइल में बिल्कुल बाउंड हुई हुई हैं. इट टेक्स इन सनलाइट, और ये सारा जो न्यूट्रिशंस है इसने सनलाइट से लिया है, वाटर से लिया है एंड एयर से लिया है, और उसी वजह से जो इसकी ब्रांचेज हैं ये बहुत सारी, यानी स्प्राउटिंग लीव्स, इसकी ब्रांचेज हैं, इसके लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं. इसलिए किसी भी एक ट्री को अगर हमें कट करना है तो उसको हम सिंपल कटिंग से नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, so hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature balls, which, if unchecked, will explain again to former size. तो कह रहे हैं इन दिस पैरा में, जो ये पैरा है इसमें पोएम है, पोएट कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कट अ ट्री यू हैव टू हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट. बट only this simple activity will not destroy a tree. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. When we cut a tree, so we suppose in this para the poet suppose that when we cut a tree, so its branches bleeds like a human being. It like the sap. You know, sap juice is
rises, sap juice rises from the tree. So the sap juice is equates with the human blood. So the poet wants to say that when we cut and chop a tree, so it bleeds like a human being. And when the heel means wound, इसका जो घाव है, when the heel is आप कह सकते हैं when the heel is रिकवर, इसकी जो घाव है, इसका जो वुंड है, जब ये रिकवर हो जाता है एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड यानी इट मीन्स जो इसकी जड़ें हैं जो बिल्कुल धरती में फैली हुई है, ग्राउंड में फैली हुई है, जब ये इसका जो ब्लीडिंग बाग है यानी जब ये पेन महसूस करता है, ये कट होता है, तो उसके बाद जब ये ठीक हो जाता है तो क्या होता है कि जो जहाँ से हमने इसको काटा है विल राइज कल ग्रीन ट्विक्स, जो ग्रीन ट्विक्स है वो दोबारा से क्या हो जाती है, दोबारा से ग्रो होने लगती है, मिनिएचर बॉल्स, छोटी छोटी ब्रांचेस, मिनिएचर बॉल्स क्या हो जाते हैं, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं यानी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ which if unchecked will expand again to former side, and if we will not check it because we want to destroy the tree, so if we will not check it that the tree is grows, so it will expand again in the former size that I have cut, that we have cut. It means अगर हम उसको नहीं चेक करेंगे तो ये फिर पुराने अपने उसी साइज में आ जाता है जिस साइज में हमने इसको कट किया था। तो इसलिए अगर हमें किसी भी एक ट्री को कट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सिंपल जो कटिंग है हमारी, सिंपल कटिंग वही हमारी सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हमें उसको अपरूटेड करना पड़ेगा, उसको हमें जड़ से निकाल फेंकना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं ये, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Now in this passage the poet wants to say that in order to kill a tree it has to be uprooted. If you want to kill a tree, if you want to destroy a tree, so you have to uprooted it. One has to separate the tree from the earth which supports it, because the roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, you can say the sensitive and the hidden part of the tree, roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. इट मीन्स इफ अगर हमें किसी भी ट्री को बिल्कुल लिटरली उसको डिस्ट्रॉय करना है तो हमें उसको अपरूटेड करना होगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि अगर हम उस ट्री की जो रूट्स हैं जो सॉइल में बिल्कुल अपने आप को जिन्होंने अपना स्पेस बना लिया, अगर हम उनको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो फिर दोबारा कुछ टाइम बाद वो फिर दोबारा रीग्रो करने लगेंगी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, हमें जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको निकाल फेंकना पड़ेगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, यहाँ ये इसलिए कहना है कि जो रूट्स है वो कलर में वाइट है और डैम्प, डैम्प मीन्स जब वो निकल जाती है तो सूख जाती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड, क्यों, क्योंकि वो बहुत सालों से इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जमी हुई है, उन्होंने अपना एक स्पेस बना लिया है, तो इसलिए अगर हमें किसी भी एक ट्री को कट करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आगे देखते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। अब कह रहे हैं कि अगर आपने once the tree has been uprooted, then gradually it withers. Withers means सूख जाना, dries, सूख जाना, dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twist and will harden. Finally the tree will die this way. इट मीन्स अगर हमें किसी भी एक ट्री को करना है तो इट मीन्स हम जब भी अगर अपरूटेड आपने कर दिया है, जब हम इसको अपरूट कर देंगे तो ये बिल्कुल क्या होगा कि ये हवा में और जो उसका न्यूट्रिशंस था वो इसको मिलने बंद हो जाएंगे और फिर ये क्या करेगा कि ये ब्राउन हो जाएगा, सूख जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, जो हीट है और जो विंड है वो इसको क्या कर देगी, इसका जो न्यूट्रिशंस था वो उसको मिलना बंद हो जाएगा, इस वजह से ये सूखता चला जाएगा। एंड द ट्रंक, इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो तना है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगा, हार्डन और बहुत ज़्यादा हार्ड भी बन जाएगा। और तब हम कह सकते हैं कि द फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और तब हम सोच सकते हैं कि इस वे में कोई भी एक ट्री कट हो सकता है, यानी कोई भी एक ट्री डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस पोएम में जो पोएट है वो हमें यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी शुड नॉट कट ट्रीज, इट इज नॉट अ सिंपल ड्यूटी, यू कैन से इट्स नॉट अ सिंपल टास्क टू कट अ ट्री, टू डिस्ट्रॉय अ ट्री, बिकॉज ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी।
कि इसमें क्या बताया है। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इसमें यूज़ की गई हैं। आई होप के आप समझ में आएगा लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, एक वो मेटाफर यूज़ की गई है। मेटाफर आप जानते ही हैं कि जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में जब हम कह सकते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं लाइक एज और सो जब हम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें बताया गया है द अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कंपेयर्ड टू द स्किन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। यानी इसमें जो ट्रंक का जो कलर है वो हमने किससे कंपेरिजन किया है, स्किन ऑफ अ पर्सन, स्किन ऑफ अ पर्सन से हमने उसको कंपेयर किया है। तो यहाँ जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो मेटाफर है। उसके बाद हमारी अलिट्रेशन भी है। अलिट्रेशन में आप जानते हैं जब किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड का 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा जब बार बार रिपीटिशन होता है तो वहाँ हमारी एलिट्रेशन होती है। तो ये एलिट्रेशन में हमारा जैसे हमने ब्लीजिंग बार्क है ना, ब्लीजिंग बार्क में हमने किया है, वाइट एंड वेट में किया है। सो मेनी वर्ड्स आर देयर व्हेन द कॉन्सोनेंट वर्ड्स रिपीट्स अगेन एंड अगेन, सो यू कैन से कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स। तो यहाँ आप एलिट्रेशन कह सकते हैं। और रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन मीन्स जब कोई एक वर्ड बार बार क्या होता है कि रिपीट होता है। जैसे यहाँ बहुत सारी जगह आउट यूज हुआ है, देखिए ये जो वर्ड है आउट बहुत सारी जगह यूज हुआ है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ रिपीटिशन भी है। सो यहाँ मेटाफर, एलिट्रेशन और रिपीटिशन ये सारी डिवाइसेस यूज हुई हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द थीम ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।